Hello everyone, in this lecture I'm going to explain you the fourth chapter of your NCERT book, and that is Gender, Religion and Caste. Students, as we have done in the previous video, that how in this chapter we are going to read about the various social differences that are gender, religion and caste, and how these divisions or how these differences in a society expressed in politics, and how and whether the political expression of these differences are dangerous to the democracy or not dangerous to the democracy. So in the previous lecture we had already covered this portion, that is gender division. So let us turn to the another form of social division, and that is religious division. So students, as we have seen in the case of gender division also, that is a universal division. That means हम अपनी कंट्री में भी इस तरह के डिफरेंस को देखते हैं, और हम बाहर भी वर्ल्ड में थ्रू आउट द वर्ल्ड यूनिवर्सली इस तरह के डिवीजन को देखते हैं. But religious differences are not universal, as we have seen in the case of gender division. Why? The reason behind that is not each and every country have the different religions in their country, because in our country or in different countries in the world have different religions in their country. So those country faces that different religious divisions. So if we see in our country also, in our country different religious peoples are there, and our country has given them all the freedom to follow their religion. Now how this division or difference expressed in politics that we are going to read in this part, because unlike gender division is not expressed in politics, but religious differences expressed in politics, or whether it is healthy or not, that we are going to analyze in this part. So students, first is religion, communalism and politics. This heading is given there. So today we are going to do this religious difference. So to consider that, first view is Gandhiji's views. Like Gandhiji expressed that religion can never be separate from the politics. That means not a particular religion, but all the good norms of Christianity, good norms from Buddhism, good norms from Islam. So जब उन्होंने ऐसा बोला कि रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम द पॉलिटिक्स, तो उससे उनका मतलब था कि अच्छी बातें जो हैं सभी धर्मों की, वो हम कहाँ पर यूटिलाइज करें? पॉलिटिक्स में. दैट एथिक्स मस्ट बी फॉलोड बाय द पॉलिटिशियंस. तो अगर वो ये बोलते हैं कि रिलीजन को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है पॉलिटिक्स से, तो उसका मतलब किसी पर्टिकुलर रिलीजन से नहीं है, बल्कि उस रिलीजन में होने वाली अच्छी बातों से है कि उन्हें सभी पॉलिटिकल लीडर्स को फॉलो करना चाहिए. On the other hand, human right groups. According to human right groups, most of the communal riots in the country is because of the faces by the religious minorities. कि जितने भी रियॉट्स होते हैं कंट्री के अंदर, उसके वजह से जो माइनॉरिटी में रिलीजन है उनको फेस करना पड़ता है. So they asked for the government to get them some rights, to save them from those kind of riots. Now on the other hand, in some women movements also, they believe that most of the discrimination among the women is because of the family laws. So to remove those discrimination, they want some rule regulation from the government. Up in these three cases, what we have seen, that there is a
connection between the religion and the politics, but that connection is not as much dangerous. अब हमें तो नहीं लग रहा है कि भाई पॉलिटिक्स इंडल्ज हो रही है रिलीजन में, लेकिन वो कहीं पर भी कैसी नज़र नहीं आ रही है, डेंजरस नज़र नहीं आ रही है. जैसे गांधी जी का पॉलिटिक्स में इंडल्ज करना रिलीजन का मीनिंग क्या है कि अच्छी बातों को इंक्लूड करना. सो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स जो हैं वो रिलीजन को इंक्लूड करते हैं पॉलिटिक्स में, तो वो माइनॉरिटी के लिए कुछ चाहते हैं, तो वो भी डेंजरस नहीं है. विमेंस इंक्लूड करती हैं रिलीजन को पॉलिटिक्स में, तो वो भी कुछ अधिकार चाहती हैं विमेंस के लिए. तो इन केसेस में हमें ये नहीं लगता कि रिलीजन डेंजरस है. किसके लिए रिलीजन डेंजरस है? अगर पॉलिटिक्स में वो इंडल्ज हो जाता है. बट ऑन द अदर हैंड वो डेंजरस कब बनता है? तो दैट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस पार्ट, दैट इज कम्युनलिज्म. कम्युनलिज्म जब आ जाता है, दैट मीन्स सांप्रदायिकता आ जाती है. दैट मीन्स दिस हैपन्स व्हेन बिलीफ ऑफ वन रिलीजन आर रिप्रेजेंटेड एज सुपीरियर टू दोज ऑफ अदर रिलीजन. ये कब होता है? कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता कब आती है लोगों के अंदर कि जब एक रिलीजन अपने आप को सुपीरियर मानने लगता है दूसरे रिलीजन से, तो क्या हो जाता है? कम्युनलिज्म एक्सप्रेस हो जाता है. तो ये जब कम्युनलिज्म आ जाता है किसके अंदर? रिलीजन के अंदर, रिलीजियस पीपल के अंदर. व्हेन द वन रिलीजन स्टार्टेड फीलिंग दैट देयर रिलीजन इज मच बेटर देन द अदर. जब इस तरह की मेंटालिटी हो जाती है एक तरह के रिलीजियस पीपल की, तो उस टाइम पीरियड में वो बहुत डेंजरस हो जाता है रिलीजन. किसके लिए? पॉलिटिक्स के लिए. और इन दोनों का जो कनेक्शन है रिलीजन का और पॉलिटिक्स का, वो डेंजरस हो सकता है बहुत ज़्यादा. जब क्या हो चुका होता है? कम्युनलिज्म स्प्रेड हो चुका होता है. कम्युनलिज्म क्या होता है? दैट हैपन्स व्हेन वन बिलीव दैट व्हेन बिलीफ ऑफ वन रिलीजन are represented as superior to those of other religion. On the other hand, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कम्युनल पॉलिटिक्स क्या कहलाती है. When state power is used to establish domination of one religion over the other, कि जब स्टेट पावर एक रिलीजन की डोमिनेशन को स्टैब्लिश कर देती है दूसरे रिलीजन के ऊपर, तो ये जो मैनर है, दिस मैनर ऑफ यूजिंग religion in a politics is called a communal politics, and that can be very dangerous. अब now how communalism expressed in politics, कि various forms of communalism expressed in politics किस तरह से नजर आता है. The communalism किस तरह से politics में नजर आता है, उसके 4 points हैं that we are going to read in this part. That is that communalism involves day-to-day belief. कि वो किस तरह नजर आएगा? day-to-day belief, stereotype, prejudice. It involves prejudice, stereotype, and that one religion is better than the other. On the other hand, secondly कैसे नजर आएगा? when communal mind जो होता है कि अब एक बार अगर किसी पर्सन का माइंड कम्युनल हो गया, तो एक तो डे टू डे बिलीफ में हमें कम्युनलिज्म कैसे नजर आएगा कि प्रेजुडाइज क्रिएट हो जाएगी उन पर्सन्स के अंदर जिनमें सांप्रदायिकता आ गई है, जिनमें कम्युनलिज्म आ गया है. प्रेजुडाइज हो जाएगी, एक रॉन्ग धारणा बना लेंगे वो लोग कि हमारा रिलीजन दूसरे से अलग है. स्टीरियोटाइप क्रिएट कर लेंगे वो लोग कि हम बेटर हैं दूसरे से, तो दैट कैन बी मोर डेंजरस. ऑन द अदर हैंड, A communal mind often quest for a political dominance. कि एक कम्युनल माइंड जब हो जाता है, कम्युनल माइंड कैसे हो जाता है एक पर्सन का कि मेरा रिलीजन दूसरे से बेटर है, तो अ कम्युनल माइंड ऑफन क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस. वो क्या कोशिश करेगा कि भाई पूरी कंट्री के ऊपर उसकी पॉलिटिकली डोमिनेंस एस्टैब्लिश हो जाए. अब ऐसे जो कम्युनल लोग हैं अगर ज़्यादा मात्रा में हैं, तो वो क्या इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे? मेजॉरिटेरियनिज्म. ऑन द अदर हैंड अगर वो कम मात्रा में है, दैट मीन्स वो क्या इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे कि वो एक पॉलिटिकल यूनिट इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे. तो ये नज़र आने लगेगा कम्युनलिज्म डे टू डे बिलीफ में. और हमें कैसे नज़र आएगा कि इसकी वजह से मेजॉरिटेरियनिज्म इस्टेब्लिश हो सकता है, अलग पॉलिटिकल यूनिट्स इस्टेब्लिश हो सकती हैं. ऑन द अदर हैंड, one important frequent way of communalism is
रिलीजियस लाइंस पे अगर हम कॉम्युनलिज्म को देखें तो दैट इन्वॉल्व्स, वो क्या इन्वॉल्व करेगा, सिंबल्स को और पॉलिटिकल लीडर्स, सॉरी जो सोशल हमारे रिलीजियस लीडर्स होते हैं उनको हम शो करेंगे। और वो क्या किस तरीके से शो हो रहे होंगे कि दे ट्राई टू प्रेशराइज पीपल टू फॉलो देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो इस तरह से भी कॉम्युनलिज्म नजर आएगा। दैट मीन्स कि कॉम्युनलिज्म ऑल्सो सीन इन द way of political lines that involves political symbols, political signs, and communal symbols, communal signs, and their communal leaders try to persuade people or try to motivate people to follow the rule regulation of a particular religion only. अब अ कॉम्युनल माइंड, अब जब एक बार कॉम्युनल माइंड हो गया तो उसके बाद दैट कैन बिकम मोर डेंजरस फॉर द नेशन। अब उससे क्या होगा और कैसे कॉम्युनलिज्म नजर आएगा कि इट बिकम द मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कॉम्युनलिज्म इज दैट कंट्री डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एज वी हैव सीन इन द केस ऑफ our country also. During the time of partition, communal riots were there. It's only because of communalism, क्योंकि हमारे अंदर क्या आ चुकी थी, सांप्रदायिकता आ चुकी थी। तो इन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले तो हमने ये देखा कि अगर हम कंसीडर करें इस केस में, इन केसेस में हमने देखा कि अगर इंडल्ज होती है पॉलिटिक्स और रिलीजन तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती। प्रॉब्लम क्रिएट होनी कब शुरू होती है रिलीजन में, जब कॉम्युनलिज्म एस्टैब्लिश हो जाता है। कॉम्युनलिज्म क्या होता है कि व्हेन वन रिलीजन स्टार्टेड थिंकिंग दैट देयर रिलीजन इज मच बेटर देन द अदर, तो ये जो कॉम्युनल माइंड होता है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। अब कॉम्युनल पॉलिटिक्स एस्टैब्लिश हो जाती है उसकी वजह से, व्हेन स्टेट पावर इज यूज्ड टू गिवन more domination of one religion group over the other. This manner of using religion in a politics is called a communal politics. We can express communalism in various forms in politics में। अगर हम various forms में देखते हैं तो day to day belief में हमें नज़र आने लगता है, स्टीरियोटाइप करने लगते हैं लोग, प्रेजुडाइज एस्टैब्लिश हो जाती है। ऑन द अदर हैंड पॉलिटिकल कॉम्युनल माइंड ऑफन क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस, वो हमेशा पॉलिटिकल डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा। ऑन द अदर हैंड अदर फ्रीक्वेंट एग्जाम्पल ऑफ कॉम्युनल पॉलिटिक्स इज इन रिलीजियस लाइन इज कि वो क्या करना शुरू करेंगे, दे स्टार्टेड यूजिंग द पॉलिटिकल सिम्बल्स, दे स्टार्टेड यूजिंग द कॉम्युनल सिम्बल्स एंड साइंस, कॉम्युनल लीडर्स उनको प्रेफरेंस देना शुरू कर देंगे। एंड मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कॉम्युनलिज्म इज द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, कि कंट्री ही टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। सो दीज आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ कॉम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स, कि पॉलिटिक्स में हमें ये वेरियस फॉर्म्स में कॉम्युनलिज्म नजर आएगा, दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। Now we move to the last topic, and that is the secular state. What is the meaning of secular state? That means when each and every individual in a country has the right to profess, propagate or follow any religion or not to follow any is called a secular state. यानी धर्म निरपेक्षता क्या होती है, धर्म निरपेक्ष राज्य क्या होता है, जिसमें हर किसी को किसी भी धर्म को फॉलो करने का अधिकार है। अगर वो करना चाहता है तो, नहीं करना चाहता तो नहीं भी कर सकता, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेक्युलर स्टेट। Which kind of constitutional provisions has been taken to make our country a secular country? कि हमारी कंट्री को सेक्युलर कंट्री बनाने के लिए ऐसे कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस लिखे हुए हैं जिससे हमारी कंट्री एक सेक्युलर कंट्री कहलाती है। तो फर्स्ट रीजन इज दैट देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन इन अ कंट्री एज फॉलोड बाय पाकिस्तान। पाकिस्तान इस्लाम को फॉलो करता है, श्रीलंका बुद्धिज्म को फॉलो करता है, बट इन आवर कंट्री देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन दैट मेक्स आवर कंट्री अ सेक्युलर कंट्री। ऑन द अदर हैंड सेकेंड हम क्या करते हैं, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज द राइट टू
प्रोफेस यानी अपने जो धर्म है उसको पालन करने का, उसका प्रचार करने का, उसको फॉलो करने का पूरा अधिकार हमारी कंट्री में लोगों के पास है। इसलिए हमारी कंट्री एक सेक्युलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। ऑन द अदर हैंड देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कि हमारी कंट्री में रिलीजन के बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। एंड इवन स्टेट गेट द राइट टू इंटरवेन इन द मैटर ऑफ रिलीजन फॉर प्रोवाइडिंग इक्वालिटी अमंग द रिलीजन, कि अगर कोई स्टेट को भी ये पावर होती है कि अगर स्टेट के अंदर डिफरेंट रिलीजन्स के अंदर कोई लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कोई उनके अंदर छोटे मोटे तनाव हो जाते हैं, तो उन सबको रिजॉल्व करने का अधिकार होता है स्टेट गवर्नमेंट का। तो इस तरह से हमारी कंट्री एक सेक्युलर कंट्री है। नो ऑफिशियल रिलीजन इज देयर, फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट एनी रिलीजन, prohibits discrimination on grounds of religion, and state intervene in religious matter to ensure the equality, कि equality ensure करने के लिए state उसमें indulge भी हो सकता है। तो students, here we completed the second topic or second type of social difference or social division, and that is religion. And first तो हमने देखा कि इंडल्जेंस ऑफ जेंडर इनटू अ पॉलिटिक्स कैन नॉट बी डेंजरस, वो डेंजरस नहीं होती बल्कि वो हेल्पफुल रहती है विमेंस के लिए। ऑन द अदर हैंड रिलीजन और पॉलिटिक्स का इंडल्जेंस अगर हम सही वे में कर रहे हैं तो वो हेल्पफुल रहेगा। ऑन द अदर हैंड अगर उसमें कम्युनलिज्म आ जाता है, कम्युनल पॉलिटिक्स आ जाती है, तो दैट इंडल्जेंस विद किस की इंडल्जेंस, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स की, इट बिकम वेरी डेंजरस। ऑन द अदर हैंड हमारी कंट्री क्या है, एक सेक्युलर कंट्री है, और सेक्युलर कंट्री एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, सभी को सभी धर्मों को पालन करने का अधिकार है। सो स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीटेड द सेकेंड टॉपिक of this chapter, and that is religion.